Today I am going to introduce logic and philosophical methods in this lecture. इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे तो वो हम करेंगे कि भाई हम फ़लसफ़ा कैसे करते हैं और फिलॉसफी के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बेसिकली फिलॉसफी के मेथड को एक नाम हम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लॉजिक। दैट इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक इज द फिलोसॉफिकल मेथड। हाउ वी डू फिलॉसफी? वी डू फिलॉसफी बाय लॉजिक। हम फिलॉसफी कैसे करते हैं? शाकिर ज़ैदी, shut up! I have told 100 times this answer to this question. What a stupid person you are. Don't you know the answer? That Iqbal is not a philosopher because he doesn't have any philosophy. And I have answered you this question many times. Don't be so stupid in front of me. What I am discussing and what you are asking. Be a responsible person in my presence. What this has to do with the topic? I am introducing the topic and you are starting asking questions. Don't be so irresponsible. So we are talking about, you have fixed ideas, fixed machine. So we have how we do philosophy. We do philosophy by logic. मतलब इसको ये अंडा आया है कि मैं कैसे उसको निकालूं, और 50 दफा इसने निकाला भी है, फिर भी बाज नहीं आता। So philosophy, we do philosophy because there is philosophy in the world. We see a lot of philosophers and their works. So how they make philosophy? We have science. So in the science we observe, we make judgments on the basis of experiments. Then we make laws and formulae. So that is science. Similarly, we have mathematics. In mathematics we do arithmetic, we do calculations, we do geometry, we do algebra. So mathematics has its own style and methods. We have art. So art has its own style. Art can be fine art. Art can be utilitarian art. We write poetry, we write novels, dramas. We exploit our aesthetical sense in art. Aesthetical. Aesthetics is both in philosophy and art, the science, the understanding of beauty. कि beauty क्या चीज़ है? What is beauty? तो ब्यूटी को प्रेजेंट करना जो है ये आर्ट का काम है। आर्ट इसको कैसे प्रेजेंट करता है? शेर बनाता है, नावल, ड्रामा। तो फन जो है या आर्ट, उसका अपना एक तरीक़ाकार है। साइंस का अपना है, मैथमेटिक्स का अपना है। तो फिलॉसफी कैसे बनती है? What are the philosophical methods to which collectively we call logic? फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ लॉजिक। जब हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। नाउ आई हैव गिवन अ फार्मूला फॉर इट एंड दैट फार्मूला इज SIDDEF, SIDDEF।
SIDEF. We have SIDEF, SIDDEF. ये एग्जाम में इसको याद रखना, और इस SIDEF पे आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं अगर आपको SIDEF याद हो। SIDDEF. S, that is Socratic method. I, inductive. D, deductive. D, dialectical. SIDEF, there is no E. SIDDF, no E. SIDDF. And the F, that is fallibilistic. Fallibilistic. So we have SIDEF, SIDDF. This is the formula of logic. This is the formula of philosophical methods. जब भी आप फिलॉसफी के बारे में लिखते हैं, लॉजिक के बारे में लिखते हैं, तो आप इस SIDEF को दरमियान में कहीं डालें तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है SIDEF, ये तो सिर्फ आपका एक एक्रोनिम बन गया कि SIDDF. S stands for Socratic method, I inductive, D deductive, the other D dialectical, and F fallibilistic. Socratic inductive, INDUC, deductive, DEDUC, dialectic and fallibilistic. तो ये हमारे पास जो है लॉजिक के तरीके हैं, जिसको हम फिलोसॉफिकल मेथड्स भी कहते हैं। सो इसमें नंबर 1 जो है दैट इज सॉक्रेटिक मेथड, विच इज माइनर लॉजिक। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है ये मेजर लॉजिक है, और सोक्रेटिक, डायलेक्टिक, फॉलिबिलिस्टिक जो है ये माइनर लॉजिक है। एक बड़ा मोटा मोटा लॉजिक है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, और सोक्रेटिक, डायलेक्टिक जो है ये माइनर लॉजिक है, ये छोटा लॉजिक है ये भी लॉजिक, लेकिन इतना फॉर्मल नहीं है जितना डिडक्टिव और इंडक्टिव है। तो और भी तरीके हैं, लेकिन ये 5 मोटे मोटे तरीके हैं जिसे हम फिलॉसफी करते हैं। वी फिलोसोफाइज, वी मेक फिलॉसफी, वी प्रोड्यूस फिलॉसफी, वी राइट फिलॉसफी। So let us start from number 1, which is Socratic method. Socratic method. Now, Socratic method, that is type of cooperative argumentative dialogue. आपका स्टार्ट कहां से होगा? Socratic method is type of cooperative argumentative dialogue, which is also called method of Elenchus. इस तरह फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। Elenchus, ELENCHUS, Elenchus। इसका दूसरा नाम क्या है? मेथड ऑफ Elenchus। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव आर्गुमेंटेटिव डायलॉग। इसमें डायलॉग है, आर्गुमेंट्स है, लेकिन कोऑपरेशन भी है। खामखा तनकीद बराए तनकीद नहीं है। देयर आर क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग and to draw out ideas and underlying presuppositions. ये सोक्रेटिक मेथड के बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसके बगैर आप इसका आंसर पेपर में नहीं लिख सकते। नंबर 1 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव आर्गुमेंटेटिव डायलॉग, इट इज आल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ Elenchus, ELENCHUS. There are questions and answers to stimulate critical thinking
and to draw out ideas and underlying presuppositions. तो सोक्रेटिक मेथड में हम क्वेश्चंस आंसर करते हैं, क्यों करते हैं? टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में पैदा हो जाए. बिकॉज सोक्रेटिस इज द फाउंडर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा, ड्रॉ आउट आइडियाज, इसमें हम आइडियाज ड्रॉ करते हैं. एंड अंडरलाइंग प्री सपोजिशंस, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको लिखा करें. कोई लफ्ज आपकी जहन में आ जाए, लफ्ज लिखा करो, पूरा सेंटेंस जरूरी नहीं कि लिखो. बाद में इस लेक्चर को आप बार बार सुन सकते हैं, और टेक्स्ट जो मैंने आपको दिए है उसको भी पढ़े. अंडरलाइंग प्री सपोजिशन. नाउ प्री सपोजिशन क्या है? Presupposition is very important in philosophy. Implicit assumption about utterance whose truth is taken for granted. Presupposition. Implicit assumption about utterance. Utterance क्या होता है? सेंटेंस जो हम अटर करते हैं, जो बोलते हैं. Whose truth is taken for granted, जिसका ट्रुथ हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. मसलन, नईम खान इज नॉट टीचिंग टुडे, या नईम खान डज नॉट टीच. नईम खान टीचिंग नहीं करता. तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइड, इसके अंदर एक इम्प्लीकेशन है. वो इम्प्लीकेशन क्या है? दैट नईम खान वॉज टीचिंग, कि वो टीचिंग करता था लेकिन अभी नहीं करता. तो इसको कहते हैं प्री सपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट. आई डोंट ईट में एक प्री सपोजिशन है कि भाई मैं पहले खाता था, आई यूज टू ईट, बट नाउ आई डोंट ईट. सो दिस इज प्री सपोजिशन. अंडरलाइंग प्री सपोजिशंस. इम्प्लिसिट assumption about utterance whose truth is taken for granted. Naeem Khan no longer teaches. I no longer use this product. I no longer use this product. मैं इस प्रोडक्ट को मजीद इस्तेमाल नहीं करता. इसका मतलब कि पहले मैं करता था. हम ये प्री सपोजिशन है, ये फॉर ग्रांटेड है, ये ट्रुथ है कि पहले मैं करता था लेकिन अभी नहीं करता. तो सोक्रेटिक मेथड में हम ये प्री सपोजिशंस निकालते हैं. ड्रॉ आउट आइडियाज, स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चंस आंसर्स, कोऑपरेटिव आर्गुमेंटेटिव डायलॉग. Now, what is the way that we continue this thing? What are the presuppositions? We have to the underlying, कि यार इस बात के पीछे क्या कहानी है. अंडरलाइंग इसको कहते हैं. अंडरलाइंग कहानी क्या है पीछे. तो सोक्रेटिक मेथड में पीछे के प्रीसपोजिशन में पहुंच जाते हैं. अच्छा, प्लेटो ने अपनी किताब है प्लेटो, उसका नाम है थियाटीटस. राइट इट, थियाटीटस. THEAETETUS. थियाटीटस. THEAETETUS.
TETUS। तो थिएटिटस जो है ये प्लेटो की किताब है अफलातून की, उसमें इसने सोक्रेटिक डायलॉग के बारे में लिखा है। क्योंकि सुकरात जो था उसने अपनी कोई किताब नहीं लिखी, उसके तमाम बातें जो है वो अफलातून ने लिखे हैं या और लोगों ने लिखे हैं। तो इसको उसने जो नाम दिया है वो नाम है ग्रीक लैंग्वेज में मायूटेक्स, MAIEUTICS, मायूटेक्स, MAIEUTICS। मायूटिस का मतलब क्या है? मिड वाइफरी, मिडवाइफरी, मिडवाइफ। मिडवाइफ जो है वो क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो जो खातून उस मां की मदद करती है तो उसको मिडवाइफ कहते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड असल में मायूटिक्स है। मायूटिक्स का मतलब है मिडवाइफरी, कि जब मां बच्चा जन्म लेती है तो वहां उसको हेल्प की जरूरत होती है। तो मिडवाइफरी जो है, वाइफरी, WIFERY, मिडवाइफ, तो वो जो हेल्प है, हम आइडियाज जनरेट करते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड में जो बच्चे पैदा होते हैं उसका मतलब है आइडियाज जो पैदा होते हैं। इसमें हम ये कहते हैं that we remove hypothesis, we eliminate hypothesis because of contradictions। मैं जी CSS करता हूं, मैं CSS के लिए तैयारी कर रहा हूं, डायलॉग है। अच्छा, तो CSS क्यों करते हो? बस जी कौम खिदमत करता हूं। तो आपको पता है कि CSS के लिए 15 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। नहीं जी, मैं तो बस 2-3 घंटे करता हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कि जब आप डायलॉग करते हैं, सोक्रेटिक डायलॉग करते हैं, तो आप बंदे को पकड़ते हैं कि यार इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसमें रद्द क्या है, ये अपनी बात को खुद कैसे रद्द करता है। फिर आप उसको पकड़ लेते हैं। बिकॉज ट्रुथ्स दैट शेप बिलीव्स देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी एंड क्वेश्चंस आर ए टेस्ट ऑफ लॉजिक। नाउ Socratic method was response to sophistry. Truths that shape beliefs, there must be consistency. नईम खान बड़ा अच्छा टीचर है। अच्छा, कैसे अच्छा टीचर है? वो तो पढ़ाता ही नहीं है। नहीं, वो डेली पढ़ाता है, वो वीकली पढ़ाता है, करता है ये। तो कंसिस्टेंसी जो है, लॉजिक, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम क्या है? लॉजिक, कि आप वही काम मुस्तकिल करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो ट्रुथ जो है, उसमें ट्रुथ का एक डेफिनेशन क्या है? कंसिस्टेंसी। ट्रू लोग कौन से हैं? जो कंसिस्टेंट होते हैं। एक बंदा आता है सैफ में जी, बड़ा जज्बे के साथ, मैं जी ये करूंगा वो करूंगा, तो महीने 2 महीने के बाद गायब, टुस, उसके सारी हवा निकल जाती है। तो सोक्रेटिक डायलॉग में लोगों की हवा निकाली जाती है, पता चलता है कि कौन पक्का है कौन कच्चा है। एंड इट इज रिस्पॉन्स टू सोफेस्ट्री, SOPHISTRY। सोफेस्ट्री वॉज मेनली बेस्ड ऑन इमोशंस एंड रेटोरिक। रेटोरिक जिसको कहते हैं बड़े बड़े बातें करना, जज्बाती बातें करना, और हकीकत में कुछ नहीं होता। तो इसको कहते हैं सोफेस्ट्री।
तो फिलॉसफी में एक जो मेथड है वो सोक्रेटिक डायलॉग है, जो सोफेस्ट्री के खिलाफ है। और सोफेस्ट्री जो है, जो लफ्ज आपको समझ नहीं आती क्लास में, बाद में उसको गूगल में देखा करें। तो सोफेस्ट्री जो है वो रेटरिक का मतलब है फिगर्स ऑफ स्पीच, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, खासतौर पर ईडियम, सिमिलीज, मेटाफर्स यूज करना, इसको कहते हैं रेटरिक। मैं आपके लिए आसमान से चांद सितारे लाऊंगा। तो ये बात बड़ी प्यारी है, बड़ी मुतासिर कुन है, ये सोफेस्ट्री है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। तो सोक्रेटिक डायलॉग जो है वो सोफेस्ट्री के रिस्पांस में आया, क्योंकि सोक्रेटिस से पहले सोफेस्ट होते थे। सुकरात से पहले यूनान में कौन होते थे? सोफेस्ट। वो इस तरह की जज्बाती बड़ी बड़ी बातें करते थे, शोला बयानी, बड़े ऐसे जज्बाती बातें के लोगों को मुतासिर करे, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं होता था। तो सुकरात ने सोक्रेटिक मेथड इंट्रोड्यूस करके सोफेस्ट्री को खत्म किया। लोग फिर उन लोगों को नहीं सुनते थे। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान में लोग मुल्लाओं को सुनना छोड़ देंगे कि मुल्ला जो है ये तो सोफेस्ट्री करते हैं, ये तो सिर्फ जज्बाती बातें करते हैं, इनके बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, एम ही बस बोलते रहते हैं, कभी आवाज ऊंचा करके, कभी नीची करके, कभी माइक दबा के, कभी गुस्सा होके, कभी हंसी मजाक करके। तो इसी तरह ग्रीस में भी ये था, लेकिन जब सुकरात आ गया तो उसने उसकी छुट्टी करा दी, उन लोगों की खत्म हो गई। फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गई, कॉमेडियंस, ड्रामा वगैरह होते थे, लेकिन लोग नॉलेज के लिए उनको नहीं सुनते थे, क्योंकि सोक्रेटिक डायलॉग जो है वो आ गया। अब सिदफ में जो दूसरा है SIDDF में, दैट इज इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव मेथड जो है उसमें हमारे पास दो वो है, सोफेस्ट, SOPHIST, जो बंदा होता है उसको सोफेस्ट कहते हैं, SOPHIST, और जो करते हैं उसको सोफेस्ट्री कहते हैं। सोफेस्टेक्स तो मैंने कभी नहीं सुना। तो सिदफ में हमने एस को कवर किया, सोक्रेटिक मेथड। अब नेक्स्ट है इंडक्टिव। नाउ इंडक्टिव लॉजिक में दो लोग मशहूर हैं, एक बेकन, BACON, क्योंकि सिदफ स्टैंड करता है सोक्रेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डायलेक्टिकल, फालिबिलिस्टिक। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो क्या है? premises are viewed as supplying some evidence but not full assurance of the truth of the conclusion. इंडक्टिव लॉजिक में premises are viewed as supplying some evidence but not full assurance of the truth of the conclusion. अब लॉजिक में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है प्रेमिसेस, PREMISES, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या है? जो आपके बेसिक सेंटेंसेस है, जो आपके आर्गुमेंट्स है, और आखिर में क्या होता है? कंक्लूजन होता है।
ये लॉजिक के बेसिक्स हैं. प्रेमिसेस, कंक्लूजन. To use premises and draw conclusion is called inferencing. Inference. इस पूरी प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? Inference. तो इंडक्टिव लॉजिक में जो हमारे प्रेमिसेस होते हैं, जो हमारे बेसिक आर्गुमेंट्स होते हैं, दे गिव अस सम एविडेंस but not full assurance of the truth of the conclusion. कंक्लूजन हम 100% उस पर श्योर नहीं होते. And what are our premises? Our premises are based on our experiences, observations, general principles. From specific observations to general conclusions. ये इंडक्टिव का मेन तरीकाकार है. We go from special observations to specific observations to general conclusions. Now, inductive method is scientific method. इसके मुकाबले में जो दूसरा है दैट इज डिडक्टिव. ये दोनों इकट्ठे ज्यादा बेहतर समझ आती है. डिडक्टिव. डिडक्टिव इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल टू स्पेसिफिक. जो मेन हमारा लॉजिक है वो या डिडक्टिव है या इंडक्टिव है. डिडक्टिव में ये होता है कि हम जनरल से शुरू करते हैं. अगर हमने पाकिस्तान के बारे में बात करनी है तो हम पूरी पाकिस्तान से शुरू करते हैं. पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं. पाकिस्तान इज a developing country. Or in the province of Punjab, per capita income is very low. That's why Punjab is a developing province. तो हमने पाकिस्तान से शुरू किया, फिर हमने पंजाब की बात की और फिर हमने कंक्लूजन निकाला. तो ये क्या है? डिडक्टिव. डिडक्टिव. डिफेक्टिव नहीं, डिडक्टिव. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. पाकिस्तान, पंजाब एंड अ पर्सन. Now, person, Punjab, Pakistan, that is inductive. मसला हम कहते हैं हम पंजाब में ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों को हम गरीब देखते हैं या डेवलपिंग टाइप देखते हैं. उनके पास कोई ख़ास गाड़ी या कोई लेटेस्ट मॉडल गाड़ी या कोई बंगला वगैरह नहीं होता. ज़्यादा लोगों के साथ हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो इस एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम ये कहते हैं कि यार ये जो पंजाब है ये डेवलपिंग है. और आखिर में यही चीज हम डालते हैं पाकिस्तान पे कि यार पूरा पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग है. तो ये क्या हो गया? इंडक्टिव. अगर हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं और एक पर्सन पे आते हैं, सो दैट इज डिडक्टिव. For example, we say that Naeem Khan is a nice person. Naeem Khan is from Pakistan.
Pakistanis are nice people. तो ये इंडक्टिव है. प्लीज राइट इट. NK is a nice person. Naeem Khan, NK is from Pakistan. Pakistanis are nice people. ये जो पहले दो बातें थे, NK is Pakistani, NK is nice, NK is Pakistani, ये प्रेमिसेस हो गए. और कंक्लूजन क्या है? पाकिस्तानीज आर नाइस पीपल. तो ये इंडक्टिव हो गया. लेकिन ये जरूरी नहीं है, मतलब ये श्योर नहीं है. हमारे ऑब्जर्वेशन तो है, एक्सपीरियंसेस भी हमारे हो गए, लेकिन ये गलत भी हो सकता है. अब इसका उल्टा हम करते हैं, डिडक्टिव. Pakistanis are nice people. Pakistanis are nice people. Please write it. इसको आप उल्टा करें, डिडक्टिव. अब हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं, इसको उल्टा करते हैं. Pakistanis are nice people. Naeem Khan is from Pakistan. Naeem Khan is a nice person. तो डिडक्टिव इज 100% श्योर. इंडक्टिव इज 100% नॉट श्योर. सो दिस इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. In the philosophy digital book, you have a lot of information on deductive and inductive logic. Once again, Pakistanis are nice people. We have some proof, some evidence कि यार पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं. ये ट्रू है, क्योंकि डिडक्टिव में आपके प्रेमिस से जो है वो ट्रू होंगे. आपके पास एविडेंस है कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं. अब नईम खान भी पाकिस्तानी है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो नाइस ना ही होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है और सारे पाकिस्तानी जो है वो नाइस है. तो ये डिडक्टिव हो गया, और इसका उल्टा जो है वो इंडक्टिव है. डिडक्टिव पे हम थोड़ी देर में आते हैं. अभी इंडक्टिव आपके सिलेबस में भी इंडक्टिव पहले है. तो इसमें दो लोग जो है CSS की फिलॉसफी में आपके कोर्स में है. एक बेकन है और एक मिल है, J.S. मिल. पहले हम बेकन की बात करते हैं. बेकोनियन जो है, फ्रांसिस बेकन, उसके मेथड को कहते हैं बेकोनियन मेथड. बेकोनियन मेथड. फिलॉसफी में ये पार्ट जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लॉजिक का, बाकी इतना मुश्किल नहीं है. बेकोनियन मेथड, फ्रांसिस बेकन जो है उसने इंडक्टिव लॉजिक लाया है दुनिया में. अरिस्टोटल ने भी इस पे काम किया है, इंडक्टिव पे. लेकिन मशहूर दो लोग हैं, बेकन और मिल. ये आपके कोर्स में है दोनों. इन दोनों पे क्वेश्चन आता है. सो बेकोनियन मेथड इज इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस. बेकोनियन मेथड इज investigative process. Bacon, Francis Bacon is the founder of modern science. ये जो मॉडर्न साइंस हम देखते हैं आजकल, तो ये बेकन की वजह से आया है दुनिया में. एंड Baconian method is the first formulation of scientific method. Baconian method is the first formulation of scientific method. In his book, name of the book is Novum Organum, Novum Organum, Novum Organum,
which was published in 1620, 1620। 1620 से पहले मॉडर्न साइंस नहीं था। एक अरिस्टोटल साइंटिस्ट था, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आ गई तो खत्म हो गया सब कुछ, मजहब ने सब कुछ खा लिया, साइंस फिलॉसफी खत्म, सिर्फ मजहब रह गया। तो बेकन की जो किताब है नोवम ऑर्गेनम, NOVUM ORGANUM, नोवम ऑर्गेनम 1620 1620 में ये किताब लिखी गई, एंड टू रिप्लेस अरिस्टोटेलियन ऑर्गनॉन। इससे पहले अरिस्टोटल ने किताब लिखी थी 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, ऑर्गनॉन। अरिस्टोटल की किताब का क्या नाम है? ऑर्गनॉन, ORGANON। तो ऑर्गनॉन जो है ये अरिस्टोटल की किताब है जो डिडक्टिव लॉजिक है। डिडक्टिव लॉजिक की किताब का नाम क्या है? ऑर्गनॉन। अरिस्टोटल ने इसको लिखी है। टू रिप्लेस Aristotle's book of Organon, Francis Bacon wrote Novum Organum in 1620. Now, this Baconian method is the application of inductive reasoning. And what are the main points? That more complex, that whenever we observe something, so things are not simple, things are very complex. We should be very careful, systematic for quality facts in collection of our data, and we should have empirical evidence, and along with that we should have axioms, AXIOMS, axioms. And then he gave the list of what can occur and which does not occur, what are the causes of the success of any procedure. For example, there is an army and there is a commander, and the commander gives instructions, army wins the war. When the commander does not give the instructions, army does not win the war. It means that there is a connection between that commander and success in the war. अब ये उसका जो है बेकोनियन मेथड है कि भाई आप ऑब्जर्वेशंस करें, मोर कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, केयरफुल, सिस्टमेटिक फॉर क्वालिटी फैक्ट्स डेटा। आप हवाई बातें ना करें, आप ऑब्जर्वेशंस करें, अपने डेटा कलेक्शन करें। एक्सियम जो है वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, जो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, जो बिल्कुल क्लियर बातें हैं, उसको आइडेंटिफाई करे और ये लिस्टिंग करे कि भाई कौन सी चीज किस वजह से होती है। मसलन एक कमांडर है, वो ऑर्डर देता है, उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो जंग जीती जाती है। वही कमांडर नहीं होता, कोई और होता है, तो जंग जो है वो हारी जाती है। इसका मतलब ये है कि जंग के हारने और जीतने का जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, उसका ताल्लुक किसके साथ है? उस कमांडर के साथ है। इस चीज को समझना जो है दैट इज साइंटिफिक मेथड। मतलब इससे पहले तो लोग जो है वो कहते बस खुदा करता है और जी ऑटोमेटिक हो जाता है, बस खुदा को मंजूर था। तो बेकन ने कहा कि भाई यार तुम जो है ऑब्जर्वेशंस करो,
डेटा कलेक्ट करो, कॉज एंड इफेक्ट देखो, चीजें कैसे अकर होती है। मसलन आपने जमीन में बीज नहीं डाला है तो उधर से पौधा नहीं निकलेगा। अब आप जाए अनपढ़ लोगों का, जाहिल किस्म के जो लोग होते हैं, मुल्ला टाइप, बस जी खुदा करता है, बारिश बस खुदा बरसाता है, बस जी हो जाता है, अब कोई पता नहीं। तो साइंस का डेवलपमेंट बेकोनियन मेथड से हो गया कि यार ये बारिश क्यों होती है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले बादल आते हैं, बादल गरजते हैं, उधर से पानी आता है, तो ये बादल कहां से आते हैं। तो उन्होंने वेपराइजेशन देखा और ओशन पे गए, ओशन देखा कि भाई ओशन से भाप उठता है, बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है। तो ये बेकोनियन मेथड था जो उसने नोवम और गेनेम में एक्सप्लेन किया। इस वजह से 1620 के बाद साइंस जो है वो डेवलप होता गया। इंडक्टिव मेथड से पहले दो बातें थी, या रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या जो भी, या जो है डिडक्टिव मेथड था। और डिडक्टिव मेथड जो है वो उसका बेसिक किस पे था, रीजनिंग पे, माइंड पे, दिमाग के अंदर। डिडक्टिव मेथड क्या है, A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C। अगर A B की बराबर है, B C की बराबर है, तो ऑटोमेटिक बात है कि A जो है वो C के बराबर है। तो मैथमेटिक्स जो है ये डेकार्ट जो आपके कोर्स में है, DESCARTES, हमारे पास डिडक्टिव में दो फिलोसफर्स हैं, डेकार्ट और अरिस्टोटल। डेकार्ट और अरिस्टोटल। तो डिडक्टिव मेथड जो है उसमें रेशनलिज्म है। रेशनलिज्म का मतलब है यूजिंग योर माइंड, अपने माइंड को इस्तेमाल करना। वो दिमाग के अंदर अंदर चलता है मैथमेटिक्स। क्योंकि डेकार्ट जो है, डेकार्ट was also a mathematician. He was a mathematician and he was a philosopher. तो मैथमेटिक्स जो है वो हवाई बातें होती है, मसलन 2 + 2 4। इसके लिए हमें जो है कोई ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। रेशनलिज्म का सबसे बड़ा सबूत जो है वो मैथमेटिक्स है। ये एक्सियम है, AXIOM, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। ये खुद क्लियर है कि जी 2 + 2 4 होते हैं, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। लेकिन बेकोनियन मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड, उसमें आपने ऑब्जर्वेशन करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना है। उसमें सिर्फ दिमागी बातें नहीं होती। तो नंबर 2 जो हमारा इंडक्टिव मेथड में जो बंदा है वो है मिल, MILL। मिल के 5 पॉइंट्स है, 5 मेथड्स है, 5 मेथड्स। इसको क्विकली राइट इट। 5 methods of induction of Mill. Number 1, introduction is that he wrote this Mill's 5 methods in a book, A System of Logic, 1843. And basically it is on causation, causes, causation. क्योंकि मजहब में causation नहीं है। कौन करता है? खुदा करता है। मर गया, बस जी खुदा को मंजूर था। रीजन में लोग नहीं जाते, कॉजेज में नहीं जाते। फिलॉसफी, साइंस और मजहब में क्या फर्क है कि फिलॉसफी और साइंस कॉज में जाते हैं। मर गया, क्यों मर गया, कौन सी बीमारी थी, बैक्टीरिया था, वायरस था, एक्सीडेंट था। तो मिल जो है उसकी किताब का नाम है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक,
1843 1620 में जो है वो आ गया अपना फ्रांसिस बेकन। साइंस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया। मिल के बाद जो है 1843 के बाद तो इसने बड़ा पुश ले लिया, क्योंकि मिल ने काउजेशन पे काम किया। भाई चीज के कॉज के पीछे जाओ, हर चीज को एक्सेप्ट वैसे मत करो, बस जी खुदा को मंजूर था। ऐसे लोग फिर लॉजिक नहीं करते, फिलॉसफी नहीं करते, साइंस नहीं करते। इस वजह से मजहबी लोगों में साइंस नहीं होता। इसका नंबर 1 मेथड जो है 5 मेथड्स में नंबर 1 जो है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीमेंट। तो 2 phenomena and there are 1 circumstances. Which one is the common cause, the necessary condition for effect? कि भाई डायरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीमेंट जो है 2 चीजें एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABCD occurs together with XYZ। ABCD है, जब ABCD है तो उसके साथ क्या हो जाता है? एग्री कौन करता है? WXYZ। ये लिखिए ABCD इज इक्वल टू WXYZ। अब दूसरा फार्मूला क्या है? AEFG। AEFG और ये इक्वल टू WTUV। तो दोनों में हमें ये फील होता है कि A इज द काज ऑफ और इफेक्ट ऑफ W। ABCD 4 है, WXYZ 4 है। WXYZ 4 है। WXYZ। उसके बाद क्या है? AEFG। AEFG इज इक्वल टू WTUV। AEFG WTUV। तो इसमें A जो है वो W के साथ मिल जाता है। If you read Wikipedia article on Mill method, so you will be reading these things there also in the writing form. तो इसमें A और W जो है वो एक दूसरे के साथ काज इनका बन जाता है। नंबर 2 जो है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, वहां एग्री करते हैं 2 चीजें, यह 2 चीजें जो है वो डिफर करते हैं। 1 phenomenon occurs, 1 phenomenon does not occur. Many things are the same, only one thing is different. So difference is the cause. Difference is the cause. For example, ABCD WXYZ, and then we say BCD XYZ. So A is absent, W is absent. So it means that A and W are cause and effect. So second method is method of difference. Number 3, joint method of agreement and difference. कभी एग्री करते हैं चीजें, कभी डिसएग्री करते हैं। अरिस्टोटल ने इससे पहले काम किया था चांस पे। यार चीजें इतनी भी वो एग्जैक्ट नहीं होती। मैं बड़ा मेहनत करता हूं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, दूसरा बंदा मेहनत नहीं करता, वो पास हो जाता है।
तो मिल ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि या दो चीजें एग्री करेंगे, ए होगा तो बी होगा, या ए नहीं है तो बी नहीं है, डिफरेंस। नंबर 3 जो है जॉइंट, JOINT, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, कभी एग्री करते हैं तो कभी डिसएग्री करते हैं। नंबर 4 जो है दैट इज रेजिडिव। नंबर 4 इज रेजिडिव, RESIDUE। रेजिडिव इज द रिमेनिंग फैक्टर। अब आप सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आपका टीचर नईम खान नहीं है तो क्लास नहीं है, हालांकि सारे मौजूद हैं। तो एक बंदे के न होने की वजह से पूरी क्लास जो है वो सस्पेंड हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। ABC है, XYZ है, B जो है वो B की वजह से Y है, और C की वजह से जो है वो Z है। तो A जो है वो हमारा मेन फैक्टर है X के साथ, तो इसको कहते हैं रेजिडिव। और लास्ट वन जो है नंबर 5, दैट इज कंकॉमिटेंट वेरिएबल्स आर वेराइटीज, वेरिएशन, concomitant। When some property of the phenomenon varies in tandem with some factor। अब 2-3 टीचर्स है, इसमें एक नईम खान है और स्टूडेंट्स है। टेंडम, इसको कहते हैं टेंडम, कंकॉमिटेंट, CONCOMITANT, कंकॉमिटेंट। कंकॉमिटेंट जो है वो इन टेंडम चलता है, TANDEM, टेंडम। तो 3 टीचर्स है, उसमें एक नईम खान है, 10 जो है वो स्टूडेंट्स है। अगर बाकी 2 टीचर्स है लेकिन एक नहीं है, तो एक की वजह से वो पूरी क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास जो है वो इन टेंडम चलती है, कंकॉमिटेंट है। कंकॉमिटेंट मीन्स इंडिस्पेंसेबल फॉर ईच अदर। नईम खान है तो मैं हूं, नईम खान नहीं है तो मैं नहीं हूं। कभी कभी काउजेशन इस तरह भी बनती है, हालांकि सब कुछ है। आप किसी शादी में जाते हैं, वो फलान बंदा आता है तो मैं आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। यार शादी है, इतनी बड़ी लोग है, हजारों लोग आए हैं, आप जो है इन टेंडेम बन जाते हैं, TANDEM, टेंडेम। आप कंकॉमिटेंट बन जाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये इसके 5 मेथड्स है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, और ये बड़ी क्लियर मेथड्स है, बिल्कुल साइंस की तरह है, क्लियर। तो बाकी जो डेकार्ट है और हीगल है, we will be discussing him proper in other classes. Today in this class we discuss in detail Socrates, Bacon and Mill. Socrates, Socratic method. Mill and Bacon we have inductive method. इंडक्टिव पे ये 2 बड़े मशहूर लोग हैं, इनकी वजह से साइंस आए हैं दुनिया में। साइंस इज द प्रोडक्ट ऑफ फिलॉसफी। हमारे यहां जो है इकबाल जैसे सो कॉल्ड फिलासफर्स है जो मजहब को मिलाता है साइंस में, इसमें फिलॉसफी में। मजहब का फिलॉसफी के साथ या साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक और दुनिया है, उसमें सब कुछ खुदा करता है। तो आपको इन बखेड़ों में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो मजहबी बंदा होता है इस वजह सुकून में होता है कि वो इन कहानियों में नहीं पढ़ता कि भाई ये काज क्या है, इफेक्ट क्या है, क्यों चीजें होती है, कैसी होती है। वो पागल हो जाता है कि यार छोटा सा सीड है, इतना बड़ा प्लांट कैसे बनता है।
बड़ा दिल गुर्दे वाला काम है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। If there is any questions in the next class or in SAFE 2,